Hi everyone. Today we will discuss about rational numbers, which is the first chapter of class 8 NCERT mathematics book. Before going to this chapter, we will discuss some simple equations which I have already written in the board. Okay, so let's start the topic. My name is Sai Syam and welcome back to my channel Maths with Sai. So here x plus 12 equals to 13. If I will solve, the value of x will be what? 13 minus 12, which is equals to 1. Number 1 belongs to set of natural numbers. Okay, then write n here. Now here the value of x is 7 minus 7, which is 0, and 0 belongs to set of whole numbers. Write w here. Now here x will be x equals to 5 minus 18 equals to minus 13, which is set of a number belongs to set of integers, means we can write here I or z. Now 2x equals to 3. This implies x equals to 3 by 2. Now 3 by 2 comes in which set? Comes in set of rational numbers. Okay, means R. And here 5x, taking 7 to the right hand side, it will be subtract from 0. 0 minus 7 is minus 7 here. Okay, again x equals to, taking 5 to the right hand side, it will be minus 7 by 5. Okay, also minus 7 by 5 belongs to set of rational numbers. Now we have already familiar to natural numbers, whole numbers, integers, but now we will discuss about set of rational numbers. According to the definition, if I will say what is rational numbers? Numbers which can be represented in the form of p by q, where p is the numerator, q is the denominator, and there is a condition: p and q belongs to set of integers. Okay, q should not be equals to 0. Okay, p and q belongs to set of integers, q should not equal with 0. Clear? Now if I will say 5 is a number, can I represent 5 in the form of p by q? Yes. How? If I write 5 by 1, here this one is p, this one is q. Okay, suppose if I write 0 here, now if I write 0 by 2, then this is also in the form of p by q. So any number taking minus 3 here, if I use 1 as its denominator, then minus 3 by 1 is equal with minus 3, and minus 3 is 3. Now in the form of p by q here, minus 3 is p, 1 is q, this one is p and 1 is q here. So all the numbers, means natural numbers, whole numbers, integers, all numbers can be represented in the form of p by q. That means all these numbers comes under p by q or set of rational numbers. Okay, now here we will discuss some properties of rational numbers. Okay, the first property is क्लोजर प्रॉपर्टी. लेट्स, तो सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी जो है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे, अगर दो होल नंबर्स को लेते हैं और आफ्टर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेटिंग एंड डिवाइडिंग दोज टू नंबर्स, रिजल्ट में हमें होल नंबर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर होल नंबर्स मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो पहले हम चेक करेंगे एडिशन के लिए. मान लो दो नंबर्स, एक 3 है, दूसरा 7 है, और दोनों को ऐड करने से हमें 10 मिलेगा, कोई चीज़ है होल नंबर. ओके, सो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन के टाइम देख लो, फिर से एक नंबर 3, दूसरा नंबर वही 7 लेते हैं और दोनों को माइनस करते हैं. ठीक है,
3 minus 7 which is equals to -4 and -4 does not come under the set of whole numbers, so सब्ट्रैक्शन का जो कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगेन टेकिंग 3 and 7 you will get 21 which is clearly visible that 21 is a whole number। तो मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आ रहा है। ओके, नाउ डिवीजन। डिवीजन एक नंबर मान लो 15 है, दूसरा 3, तो 15 डिवाइड 3 5 आ रहा है। ओके, और एक नंबर 12 and if I will take another number 5, then here we will not get a whole number, means what will come here? Here a fraction will come, 12 by 5. 12 by 5 is not in set of whole numbers, that means division is not coming, as a result whole numbers are not coming here in all cases, so this one is cross। clear? so तो इनिशियली वी चेक्ड अबाउट होल नंबर्स। नेक्स्ट में हम देखेंगे अबाउट इंटीजर्स। ओके, तो दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो चेक करेंगे फिर से आ रही है या नहीं जो रिजल्ट है वो इंटीजर्स। मान लो एक नंबर है -5, दूसरा है 4, दोनों इंटीजर्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें -1 मिलेगा विच इज़ ऑल्सो वन इंटीजर, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक लेते हैं -2, दूसरा माइनस करते हैं उसमें से 5, -2 - 5 दैट इज़ -7, -7 इज ऑल्सो वन इंटीजर, तो ये वाला भी काम कर रहा है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, एक ले जाते हैं -3, दूसरा 7, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस -3 × 7 21, तो -21 भी इंटीजर में आता है, तो ये वाला भी सही है। अब डिवीजन वही सेम नंबर ले जाते हैं, एक -3 डिवाइड 7, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो रिजल्ट में हमें वही -3/7 ही आएगा। तो -3/7 इंटीजर्स में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क लगाएंगे। तो ये हो गया इंटीजर्स। अब द इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में सेम चीज़ चेक करें कि दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिजल्ट में हमें रेशनल नंबर्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलते हैं, पहले हम ऐड करेंगे। एक नंबर मान लो 2/3 है, दूसरा मैंने ले लिया 3/4, तो 3 and 4 दोनों का एडिशन कैसे होता है? 3 and 4, तो दोनों का एलसीएम होगा, दोनों को प्राइम से दोनों का एलसीएम हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 12। 12/3 4 × 2 दैट इज 8, प्लस 12/4 3 × 3 दैट इज 9, 8 + 9 17 डिवाइडेड बाई 12। तो रिजल्ट में हमें P/Q फॉर्म में आ रहा है हमारा आंसर, जो एक रेशनल नंबर्स भी है, तो ये वाला टिक लगाओ। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सेम नंबर ले जाते हैं 2/3 - 3/4, वही एलसीएम आ जाएगा 12, अगेन 12/3 4 × 2 8, माइनस 12/4 3 × 3 9, 8 - 9 -1/12। जो भी रेशनल नंबर्स आ रहे हैं दोनों का डिफरेंस भी रेशनल आ रहे हैं, तो ये भी सही है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 × 3/4, 3 3 कैंसल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो रिजल्ट में हमें 1/2 मिल रहा है। 1/2 ऑल्सो ए रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रेशनल आ रहा है। अब आता है डिवीजन की बारी, ध्यान से देखना। वही 2/3 के साथ अगर मैं डिवाइड 3/4 करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3 डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 3/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/3, 2 4 = 8/9, ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं और एक नंबर लूँ, मान लो 5/7 डिवाइड 0, तो 0 यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला था, 0 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करूँगा तो उसके नीचे कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 5
मैंने लिख लिया 6, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, 5/7 डिवीजन हो जाएगा इनटू 0/6 का रेसिप्रोकल 6/0। तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, 5 × 6 30/7 × 0 0। तो ऑलरेडी कंडीशन में बोला था क्या होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P एंड Q आर इंटीजर्स बट Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे 30/0 तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। 30/0 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, दैट्स वाई डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स हमेशा रेशनल नंबर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट हम फिर से सबको एक ही टेबल में डिस्कस करते हैं। तो जो भी हमने डिस्कस किया अभी उसको एक ही टेबल में मैंने सारा चीज़ लिख लिया। जैसे कि पहले हम रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर को ऐड करने से रिजल्ट में हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से भी रेशनल मिल रहा था, मल्टीप्लिकेशन में भी रेशनल आ रहा था, लेकिन डिवीजन का टाइम डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, दैट्स वाई क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर्स नहीं होता है। इंटीजर्स में सम आ रहा था, इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर्स आ रहा था, लेकिन डिवीजन का टाइम क्या आ रहा था, रेशनल नंबर्स आ जाता था। होल नंबर्स में दोनों का सम होल नंबर्स आता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या आ जाता था, इंटीजर्स आ जाता था, ओके। एंड मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स, डिवीजन में रेशनल नंबर्स आ जाता था। नेचुरल दोनों का सम नेचुरल नंबर होता है, डिफरेंस इंटीजर्स हो जाता है, प्रोडक्ट ठीक नेचुरल नंबर आता है, सेम डिवीजन का टाइम रेशनल नंबर आ जाता है। तो ये था इन ब्रीफ क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो होता है रेशनल नंबर्स के अंडर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर चेंज करके, मतलब a + b का वैल्यू जो होता है इक्वल्स टू b + a, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले हम रेशनल नंबर्स के लिए चेक करेंगे, फिर इंटीजर्स, होल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर्स। तो मैंने दो रेशनल नंबर ले लिया, एक होता है 2/3, दूसरा होता है 5/7। अगर 2/3 + 5/7 जितना आएगा, 5/7 + 2/3 उतना आ जाता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो पहले चेक करते हैं 2/3 + 5/7, 3 7 जा 21, दोनों प्राइम है इसलिए एलसीएम हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। 21/3 7 × 2 14 प्लस 21/7 3 × 5 15। तो 14 + 15 कितना आ जाएगा, 14 + 15 आ जाता है 29/21। अगर मैं 5/7 को 2/3 के साथ ऐड करूँगा फिर भी मुझे 29/21 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। चेक करते हैं, 5/7 + 2/3 सेम आ जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा फिर से 21, ओके। एंड 21/7 3 × 5 15 प्लस 21/3 7 × 2 14, और रिजल्ट में हमें 29/21 मिल रहा है। तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 29/21, यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब एडिशन के लिए क्या है, रेशनल नंबर सही है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं सेम नंबर लेता हूँ, यहाँ पे 2/3 - 5/7, तो सेम एलसीएम 21, ऊपर आ जाएगा 14 - 15, 14 - 15 होता है -1/21, ओके। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, मतलब 5/7 -2/3 एलसीएम फिर से 21, 21/7 3 × 5 15 -14 जो होता है 1/21। तो यहाँ पे -1/21 आया था, यहाँ पर 1/21 आ रहा है। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव होता है रूल वो रेशनल नंबर्स के लिए काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे
यहाँ पे क्रॉस फॉर रेशनल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी, दोनों नंबर्स फिर से लेते हैं। 2/3 इंटू 5/7, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अगर इसको चेंज करेंगे सेम आंसर आ जाएगा 5/7 इंटू 2/3, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। ओके, अब डिवीजन की बारी, तो ये वाला भी सही है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ऑर्डर चेंज करने से भी आंसर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ डिवीजन, 2/3 डिवाइड 5/7, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल इनटू करेंगे, इनटू 5/7 का रेसिप्रोकल होता है 7/5, 2 7 जा 14/15। अब 2/3 डिवाइड 5/7 किया था, अब क्या करेंगे 5/7 डिवाइड 2/3, ठीक है, 5/7 इंटू 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2, 5 3 जा 15/14। सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव या फिर ऑर्डर चेंज करने से डिवीजन के टाइम क्या आ रहा है, आंसर अलग आ रहा है। तो ये था रेशनल नंबर्स के लिए कि एडिशन का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डिवीजन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम इंटीजर्स के लिए देखते हैं, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, -3 + 2 जितना आता है, कितना आता है, -1 आता है। ओके, अब इसका रिवर्स कर लेंगे, मतलब 2 + -3, 2 + -3, बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन देके 3 से 2 माइनस करेंगे 1, दोनों का आंसर आ रहा है सेम, सही है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 से माइनस करेंगे 2, तो आंसर में हमें -5 मिलेगा। ओके, अब इसको चेंज कर लो, 2 से माइनस करेंगे कितना, -3, मतलब 2 + 3 5 आ रहा है, मतलब अलग अलग आंसर। -3 से हमने कितना माइनस किया था, 2 किया था, -5 आया। अब हमने 2 से माइनस किया -3, तो आंसर आ गया 5, यहाँ पे -5, यहाँ पे 5, मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव रूल काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, वही सेम नंबर ले लो, -3 इंटू 2 आता है -6, 2 इंटू -3 आ जाएगा वही -6। वेरी गुड, दोनों सेम है, क्लियर। अब डिवीजन की बारी, -3/2 में रिजल्ट में हमें मिलेगा -3/2, और 2/-3 में रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, -2/3। मैंने माइनस साइन को ऊपर लिख लिया, ठीक है, न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो -2/3, यहाँ पे -3/2, दोनों का आंसर अलग, तो कम्यूटेटिव रूल काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब आता है होल नंबर्स, कोई भी होल नंबर ले लो, ईजी है, 3 + 5 = 8, 5 + 3 भी 8 होता है। तो होल नंबर्स के लिए जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव रूल फॉलो कर रहा है। अब सब्ट्रैक्शन, 3 - 5 होता है -2, और 5 - 3 होता है 2, दोनों का ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर अलग अलग आ रहा है। 3 से 5 -2 आ रहा है, 5 से 3 माइनस करने से 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव रूल नहीं काम कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर ले लो, 3 × 5 जो होता है 15, 5 × 3 भी 15 होता है, तो इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से आंसर सही आ रहा है। अब डिवीजन, 3 / 5 होता है 3/5, 5 / 3 होता है 5/3, मतलब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे, कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब नेचुरल नंबर्स कोई भी ले लो, एक 2, दूसरा 7, 2 + 7 9 होता है, और 7 + 2 भी 9 होता है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव रूल फॉलो कर रहा है। 2 - 7 होता है -5, एंड 7 - 2 होता है 5, एक -5 दूसरा 5, तो क्रॉस लगा दो, ठीक। अब इंटू की बारी, 2 × 7 14, 7 × 2 भी 14, तो ये काम कर रहा है, क्लियर। अब 2/7 हो जाएगा फिर से रेशनल, 2 / 7, 7/2 में हमें मिलेगा 7/2, यहाँ पे दोनों अलग अलग आ रहा है। तो ये था इन शॉर्ट कम्यूटेटिव रूल रेशनल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए एंड नेचुरल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने सारा एग्जाम्पल्स लेके चेक कर लिया।
तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव रूल, सेम चारों के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू।